وجہ شہرت یہ نہیں ہے کہ روپیہ پیسہ، نہ اس بات سے وہ ترقی کرتا رہا کہ اس کے تعلقات بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ، بلکہ ایک چیز پر لکھا ہے کہ داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الفاظ اس کے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور مرد دعا سینئر پاسٹر شمال صاحب جس سیمینار پر گئے ہوئے ہیں، ترقی کامیابی نہ تو مشرق سے ہے، نہ جنوب سے ہے، نہ شمال سے، نہ کسی اور سمت سے، بلکہ ایک ہی طرف سے ہے اور وہ یہ ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم خدا کے کلام کی جانب بڑھیں۔ خدا کے کلام میں یسوع کے بارے میں پیشن گوئیاں تھی۔ میں نے یہ پیدائش اس لیے یہاں سے بگننگ کا آغاز کیا ہے، پیدائش میں سے، تاکہ آپ یہاں سے سیکھ سکیں کہ پیدائش ہی میں اسے کہا گیا تھا کہ وہ مولود خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے، مسیحا یعنی کہ کہلائے گا۔ اور مسیحا کے لیے عبرانی میں مشایا لفظ استعمال کیا گیا، یونانی میں کرسٹوس، انگلش میں مسایا، اور جو ہم لوگ اردو سمجھتے ہیں ہم اسے مسیحا کہتے ہیں۔ مطلب ایک ہی ہے، بچانے والا، مسح کیا ہوا، خدا کا چنا ہوا۔ جب یسایہ کی کتاب 61 باب کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا۔ لوکا کے اندر جب یہی صحیفہ جو یسایہ نے 750 سال پہلے یسوع کے آنے سے پہلے یہ جو نوشتہ تھا، یہ یسوع مسیح نے جب پڑھا تو یسوع نے کہا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہوا۔ یسوع نے اس کا بھی دعویٰ کر دیا کہ جو آنے والا مسیحا تھا، مسایہ تھا، جو کرسٹوس تھا، وہ میں ہی ہوں، کہ یہ نوشتہ آج پورا ہو گیا۔ پھر نبیوں کی پیشن گوئیاں کہ وہ مولود خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس کے دعوے کی تکمیل ہے، کہ جو اس نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح ہے، وہ بچانے والا ہے، مسح شدہ ہے، یہ اس کے جی اٹھنے کی ایک بڑا اہم ثبوت ہے کہ وہ اپنے دعووں پر قائم ہے۔ آمین۔ یسوع کے بعد بھی 12 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مسیح ہیں۔ ہسٹری کے اندر یسوع جب مردوں میں سے زندہ ہو گیا تو اس کے بعد 12 لوگوں نے بھی آ کر یہی کہا کہ ہم مسیح ہیں، ہم خدا کی طرف سے ہیں، ہم مسیح ہیں، اور پھر وہ بھی دفن ہوئے، لیکن آج تک وہ دفن ہی ہیں۔ لیکن یہ یسوع مسیح کا دعویٰ تھا کہ وہ مسیح ہے، نبیوں کی پیشن گوئیاں ہے کہ وہ مسیح ہے۔ اور آگے بائبل مقدس میں لکھا ہے، زبور 2 کے اندر، 72 زبور کے اندر، 89 زبور کے اندر اور 110 زبور کے اندر اس کے مسیحا ہونے کے بارے میں کہ وہ مسیح ہے۔ اور یسوع نے خود بھی مسیح ہونے کا اقرار اور دعویٰ جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے کیا۔ اس نے کہا کہ جب وہ عدالت کے اندر ہے تو تاب اسے کہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو مسیحا کہتا ہے، اسے کہ تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، تو وہ عدالت میں بھی کہتا ہے کہ تو خود کہتا ہے۔ اور پھر اس نے پاؤں دھوتے وقت بھی اقرار کیا، اسے کہا تم مجھے خداوند اور استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اس نے اقرار کیا کہ میں ہوں۔ اب وہ خداوند ہوتے ہوئے مر جائے یا قبر میں رہ جائے تو یہ اس کے دعووں کی تکمیل نہیں ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں، میں مسیح ہوں، تو مسیح کا تو نہ تو آخر ہے اور نہ اینڈ ہے، بلکہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم یوحنا 2 باب کی 20 آیت مقدسہ میں کہ تم اس مقدس کو اٹھا دو تو میں تیسرے دن پھر اسے کھڑا کر دوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا
کہ وہ ایک جگہ پر لوکا 24 باب 7 آیت مقدسہ میں کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ ابن آدم پکڑوایا جائے، دکھ اٹھائے، مصلوب ہو جائے، دفن ہو اور تیسرے دن کیا ہو جی مردوں میں سے۔ یہ بھی اس کا دعویٰ، اور اس نے ان دعووں کی تکمیل کر کے دکھایا۔ جو تیسرے پورشن پر جو تصویر ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے جتنے دعوے بھی کیے وہ پورے کیے۔ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل کیا جی؟ اب وہ کامل انسان ہوتے ہوئے جیسے سب آدمیوں پر موت آتی ہے، ایسے ہی وہ کامل انسان ہوتے ہوئے قبر میں گیا، اس پر موت آئی، لیکن کامل خدا ہوتے ہوئے وہ قبر میں سے تیسرے دن جی اٹھا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں کامل انسان اور کامل خدا ہوں۔ اب کامل استاد ہوتے ہوئے تو وہ مر گیا۔ کوئی بھی ٹیچر ہے انسانی پوائنٹ آف ویو پر وہ انسان ہوتے ہوئے ضرور موت کے مزہ کر سکے گا، لیکن کامل خداوند ہوتے ہوئے اس نے کہا تو مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، میں ہوں۔ اب وہ استاد ہوتے ہوئے تو مرا، لیکن خداوند ہوتے ہوئے اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ! یہ پہلا اس کا بطور ایک مسیح ہوتے ہوئے یہ ثبوت کی ہے کہ وہ واقعی ہی مسیح ہے۔ ہم اس سے مسیح اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مسیح اس طور پر ہے کیونکہ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا تو پھر وہ مسیح بھی نہ ہوتا، کیونکہ وہ زندہ ہے تو مسیح ہے۔ شفا اس سے پہلے مردے بھی زندہ ہوتے تھے، کوڑی بھی پاک صاف ہوتے تھے، لیکن اس کے زندہ ہونے سے ہمیں کیا ملی؟ نجات۔ اس لیے تو اسے کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ! اور بائبل مقدس میں یسوع بطور بادشاہ اور مسیح ہمیں پیش کیا گیا ہے۔ کرنتس کی کلیسیا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ مسیح نے موت پر، اس بادشاہ نے بطور موت پر حکمرانی کی، کیونکہ یہاں سے ہی اسے بادشاہ تسلیم کر دیا گیا تھا۔ جو پہلی سلائیڈ ہے اس کے اندر ہی سے بادشاہ تسلیم کر دیا گیا تھا، اور یہاں پر ہی سے بادشاہ والے گفٹ سونا، مور و لبان دیا گیا۔ اور کیونکہ اسے بادشاہ سجدہ کرنے لگا کہ یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ اب لوگ اس بات پر بھی بڑے کانشن تھے کہ یہ کیسے یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ نہ تو اس نے کوئی سینا تیار کی، فوج تیار کی، نہ اس نے کوئی ویپن جو ہتھیار ہوتے ہیں نہ وہ دیے، نہ تو اس نے کوئی علیحدہ سے آرمی اپنی فوج تیار نہیں کی جنگ و جدل کے لیے۔ یہ کیسے بادشاہ ہے یہودیوں کا؟ اور یسوع بطور یہودیوں کا بادشاہ اس طور پر ہے کیونکہ وہ قبر میں سے جی اٹھا ہے۔ اور پہلا کرنتس اس کے 15 باب اور اس کی 55 آیت مقدسہ میں لکھا ہے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کیا ہو گیا جی؟ فتح کا لقمہ ہو گئی۔ جتنے یہودیوں میں بادشاہ آئے وہ سب وقت مقرر پر مر گئے۔ آج تک ان کی قبریں اور ان کے جسد وہاں پر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ یہودیوں میں بطور بادشاہ اس لیے ہے کیونکہ یہ بادشاہ دنیا میں پیدا بھی ہوا، دنیا میں مصلوب بھی ہوا، اور دنیا کے اندر یہ دفن بھی ہوا، اور اسی دنیا کے اندر یہ زندہ ہو کر ابدل الاباد تک بادشاہ بن گیا۔ اور جس کے بارے میں بائبل کہتی ہے مقاشفہ کی کتاب کے اندر اس کے 19ویں باب اور اس کی 16 آیت مقدسہ میں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا، باقی سارے بادشاہ ایک ایک ریاست، ملک، کنٹری کے تھے، لیکن یہ بادشاہوں کا بادشاہ اس لیے ہے کیونکہ اس نے موت، ابلیس اور قبر پر فاتح ہوا ہے۔ ہاللیلویہ!
یہ اس کے پہلا حصہ ہے جو ہم نے سیکھا ہے کہ اس کے مسیح ہونے کا دعویٰ، اس کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ، اس لیے پر ثبوت طریقوں سے وہ مسیح بھی ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے۔ اب دوسری بات ہم خدا کے کلام مقدس میں سیکھیں گے اس کے جی اٹھنے کی قدرت کے بارے میں۔ فرشتے نے عورت کو کیوں گواہی دی؟ فرشتے نے عورت ہی کو کیوں گواہی دی؟ اس کا ایک بڑا اہم راز ہم خدا کے کلام میں سیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم دنیا داری سیاسی پوائنٹوں پر دیکھیں تو جو اس وقت کی حکومت رومی حکومت ہے، دنیا داری میں رومی حکومت کے اندر عورت کی گواہی کی کوئی ترجیح نہیں دی جاتی، کوئی اسے اہمیت نہیں دی جاتی۔ پہلی بات کہ اس عورت کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اور پھر اگر گواہی کو تسلیم کیا جائے تو دو اشخاص کی گواہی کو، دو آدمیوں کی گواہی کو شریعت کے اندر، رومی لاء کے اندر جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جاتا ہے۔ یسوع نے کہ جی اٹھنے کی گواہی فرشتے کے ذریعے عورت تک پہنچی، اور عورت تک گواہی یہ فرشتے کے ذریعے اس لیے آئی کیونکہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے کا کردار کیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے آ کر پتھر کو لٹکا دیا، اور پھر دوسرے کام خوشخبری، گڈ نیوز عورت کو ہی دی گئی۔ پرانے عہد نامہ میں آئے میرے ساتھ، پیدائش کی کتاب 3 باب 12 قسم۔ کیوں عورت کو گڈ نیوز دی گئی ہے؟ کیونکہ عورت پیدائش ہی سے عورت کا ایک ایسا سٹیٹس ہمیں نظر آتا ہے، ایک ایسا کردار نظر آتا ہے کہ اسے حقیر چھانا جاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب 3 باب 12 قسم، اور خداوند نے صاف سے کہا، نہیں جی 12 قسم۔ آدم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ لکھا ہے کہ آدم نے عورت کا قصور نکال دیا، اور عورت کا قصور وہاں سے نکلتا ہی رہا، اور یہ قصور میرے یسوع نے دور کیا کہ عورت نے کہتا کہ آدم کہتا کہ عورت نے مجھے یہ پھل کھلایا اور میں نے کھا لی۔ پھر اسی بات کی 17 قسم میں خداوند بھی کلام کر کے کیا کہتے ہیں، سنیے گا اس بات کو۔ اور آدم سے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے، اب زمین لعنتی ہوئی ہے۔ تو کس کی بات ماننے سے لعنتی ہو گیا جی؟ عورت کی بات ماننے سے۔ اور یہی لعنت کو دور کرنے کے لیے خدا نے کسی آدمی کو پیغام نہیں دیا، فرشتے کے ذریعے عورت سے پیغام دیا ہے کہ وہ زمین کی لعنت کو دور کرے۔ اور آج زمین کی لعنت کو دور بھی ہوئی عورت کے پیغام سے، اور جتنے میں اور آپ بھی بیٹھے ہیں اسی پیغام سے ہم مسیح ہیں، اور پوری دنیا میں نمبر 1 جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے، وہ مذہب مسیح ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یہ عورت کی اس بات کو ماننے سے، پہلے عورت کی بات ماننے سے زمین لعنتی ہوئی، آج پوری دنیا عورت کی اس گواہی کی بات ماننے سے نجات یافتہ ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ! اور دوسری بات بائبل مقدس میں کہ عدن کے اندر سے ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ عورت نے پھل کھایا، اور اس پھل کھانے سے کیا ہوا؟ نسل انسانیت گناہ میں چلے گی۔ یعنی کہ یسوع کی جی اٹھنے کی قدرت سے کیا ہوا؟ پہلا پھل بھی یسوع کو کہا جاتا ہے، اور جی اٹھنوں میں پہلا پھل اگر آپ پڑھ دیں اس حوالے کو تو آسانی ہوگی۔ پہلا کرنتس 15 باب 23 قسم، یہاں پر یسوع کو جی اٹھنے والوں میں سے، مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلا پھل کہتے ہیں، اور عدن میں ایک پھل کھایا گیا جس سے نسل انسانیت گناہ میں چلے گی۔
जैसे आदम में सब मरते हैं, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से नहीं जी, पहला करंतस 15:23। लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यस, यानी कि सब अपनी अपनी बारी पर मरेंगे, लेकिन पहला फल जिंदा होने वालों में से वो कौन है जी? मसीह है। और ये पहला फल इसलिए है क्योंकि अदन में एक फल खाया, नस्ल इंसानियत गुनाह में चली गई। फिर एक फल और औरत ने खाया, और फरिश्ते जब्राइल ने कहा सदीक़े मरियम से कि मुबारक है तेरे पेट का फल। ज़बूर 127 के अंदर लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर। इससे पहले जितने भी औरत से पैदा हुए वो फल, वो सब के सब मर गए। अय्यूब 14 पहली आयत के समय लिखा है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है वो थोड़े दिनों का है, दुख और मुसीबत से, मुशक्कत से वो भरा हुआ है। अब जितने भी यीशु मसीह से पहले हवा से जितने भी पैदा हुए, वो सब के सब जो थे वो औरत से ही पैदा हुए, और वो थोड़े दिनों के थे। यीशु भी औरत से पैदा हुआ, लेकिन ये फल जो पहला फल औरत ने खाया उससे नस्ल इंसानियत गुनाह में चल गई। लेकिन दूसरा फल जिसकी शहादत गवाही जब्राइल आके कहता है कि मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु, कि यीशु जो तेरे पेट का फल है वो मुबारक है। पहले फल से इंसानियत गुनाह में चल गई, और दूसरे फल से वो इसलिए पलटो जो वो पहला फल है, क्योंकि जितने भी फल वो पैदा हुए वो सब के सब मर गए। लेकिन जो ये फल यीशु को इसलिए पहला फल कहा जाता है मुर्दों में से, जिंदा होने वालों में से, क्योंकि ये अपने कहने के मुताबिक 30 दिन मुर्दों में से। इसकी रीजन क्या है? ये किस तरह पहला फल है? बाइबल में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? जितने भी आए उन सब में गुनाह पाया गया। लिखा है कि सब खुदा के जलाल से महरूम रहे। अब ये इसलिए पहला फल है क्योंकि इसमें गुनाह नहीं था। वो खुद कहता है कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित किया, इसलिए ये पहला फल, क्योंकि इसके अंदर गुनाह नहीं था। और ये पहला फल ना तो गला है, ना सड़ा है, ना मरा है, बल्कि बाइबल में लिखा है कि ज़बूर की किताब में कि वो अपने मक़दस को गलने और सड़ने नहीं देगा, बल्कि कहने के मुताबिक 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो सब में से पलौठा और पहला फल बन गया। हालेलुया। दूसरी बात कि वो पलौठा क्यों है, ये खुदा के खादिम ने पहले भी इस बात को बताया कि वो पलौठा इसलिए नहीं है कि वो पहले जिंदा हुआ है, बल्कि वो पलौठा इस तरीका से है कि जिस तौर पर दूसरे जिंदा हुए। यानी कि सलातीन के किताब पहले बाब 17 और उसकी 17-24 आयत तक सरपत की बेवा का वाक़या मिलता है। दूसरे सलातीन में 2 मुर्दे जो अलीशा ने जिंदा किए उनका जिक्र मिलता है। यीशु ने 3 मुर्दे जिंदा किए, पलूस ने किए, और इसके साथ पतरस ने किए। इन सब में जिंदा होने के लिए इंसानी किरदार बड़ा अहम नजर आता है। यार अगर मुर्दा जिंदा करवाते ना अपनी बेटी को, तो वो यीशु को लेने जाता है। एक तो इसके अंदर इंसानी किरदार नजर आता है कि इंसान के किरदार के बगैर मुर्दे जिंदा नहीं हुए। वो इस इतबार से बतौरे इस तरह वो पलौठा है क्योंकि ना तो यीशु को जिंदा करने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ी है, बल्कि यीशु को जिंदा करने वाली एक ही कुदरत है, और उसका नाम यहोवा है। और वो बतौरे मुर्दों में से इसलिए पलौठा है क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है कि जितने पहले जो है वो जिंदा हुए वो फिर मर गए। अब यीशु जो है वो जिंदा तो हुआ, लेकिन उस बदन के अंदर जिंदा नहीं हुआ जिसमें दूसरे तौर पर जिंदा होते। यीशु जिंदा हुआ, और मुकाशवा की किताब पहला बाब 18 कसम लिखा है, मैं मर गया था, अब मैं क्या हूँ जी? जिंदा हूँ।
क्योंकि जितने पहले जिंदा किए गए मुर्दे वो फिर मर गए। ये मुर्दों में से पलौठा होने की रीजन, वजह ये है, बाइबल कहती है कि वो अबद तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, क्योंकि ये कभी नहीं मरेगा। और फिर कलाम मुकद्दस में हम अगली बात को सीखते हैं कि गुनाह का मुकम्मल कफारा हुआ। यीशु के जी उठने से चौथी बात को हम सीख रहे हैं कि यीशु के जी उठने से और क्या हुआ। अब गुनाह का मुकम्मल कफारा हुआ। क्या सलीब पर गुनाह का मुकम्मल कफारा नहीं हुआ? एक सवाल। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि गुनाह का मुकम्मल कफारा यीशु के मुर्दों में से जी उठने से होता है। अदन के बाग से लेकर जितने भी बड़े ज़बा किए जाते थे वो बड़े वहां ही मर जाते थे। खुदा ने अदन में 2 बड़ों का ज़बा किया, जिसमें से 2 कुर्ते बनाए गए, एक हवा के लिए और एक आदम के लिए। और उसके बाद वो जो ज़बा किया गया बना था वो तो वहीं बना है, उसका खून निकला लेकिन वहां का वहां ही वो पड़ा रहा, बना रहा। फिर पास ओवर नजर आता है, यानी कि एक लंबी लिस्ट है। इब्राहिम ने भी बड़े को ज़बा किया आइज़क की जगह, और वो बना भी बना ही बना रह गया। फिर पास ओवर नजर आता है। ये पास ओवर जहां पर खुदा ने कहा कि अपनी चौखटों पर खून लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी जितने बड़े उस वक्त मुल्क मिस्र की गुलामी में रहते हुए कौम बनी इसराइल ने जितने भी खानदानों समेत बेशुमार बड़े उन्होंने ज़बा की, और बेशुमार बड़े ही वहां के वहां मरे पड़े रहे। सिर्फ उनके ब्लड से वो मौत का फरिश्ता उन्हें छोड़ता गया। लेकिन यहाँ पर जो ये हकीकी भरा है, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील 2 बाब 29 में ये लिखा हुआ है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा और पुकार के कहा, देखो खुदा का भला जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। अब फिर मुकम्मल कफारा के लिए इसने क्या किया? ये पताल के अंदर गया। पहला पत्रस 3 बाब 19 आयत को पढ़िएगा कि इसने मुकम्मल कफारे के लिए, क्यों कहा जाता है कि यीशु के मुर्दों में से जी उठना जो है वो एक मुकम्मल कफारा है। गुनाह का मुकम्मल कफारा, ज़मीर वालों के गुनाह तो उसने सलीब पर माफ कर दिए जान देकर। अब उससे पताल वालों की भी फिक्र, जो पताल के अंदर है, जिसे जादूगरनी जब चाहे पुकारती थी है। वहां पर शमूएल, पहला शमूएल 28 बाब में लिखा है कि वो जादूगरनी कहती है, बता मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं। अब साउल जो था वो जो शमूएल को जानता था, किसी का भी नाम ले सकता था, लेकिन वो शमूएल को जानता था। अब यीशु का गुनाह पर मुकम्मल कफारा इसलिए है क्योंकि दुनिया वालों को तो उसने सलीब पर कुर्बान होकर बचा लिया। अब पढ़ दिएगा जरा। इसी में उसने जाकर उन कैदीनों में जो कहा दीजिए वो पताल के अंदर जमीन वालों को तो उसने छुड़ा लिया खून बहा के जान देकर, लेकिन उससे पताल वालों की भी फिक्र है। और वो पताल वालों को भी अपने साथ जो है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जब जी उठा तो अपने साथ उन्हें भी ऊपर उठा ले आया। हालेलुया। क्योंकि जितने बड़े कुर्बान हुए थे वो सब बड़े मर जाते थे, लेकिन ये बड़ा भी कुर्बान हुआ, मरा भी, इसका खून भी बहा, लेकिन ये तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने वाला वह ही बड़ा है। मुकाशरा की किताब 5वें बाब में लिखा है कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही इज्जत, तमजीद, दौलत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। हालेलुया। क्योंकि जितने बड़े आए उनमें ना तो इज्जत पाई जाती, ना उनकी तमजीद की जाती, ना उनकी सिताइश की जाती, ना उनके आगे अपने सरों से ताज जो है उतार उनकी वड्याई की जाती। एक ही बड़ा है जिसका नाम यीशु है, जिसके आगे चारों जानदार वो अपने मुंह को छुपा लेते हैं। और लिखा है कि 24 बुजुर्ग अपने सरों से ताज उतार कर सजदे में जाकर कहते हैं कि ज़बा
किया हुआ बड़ा ही इज्जत और तमजीद के लायक है। हालेलुया। क्योंकि ये फना जो है ये जिंदा हुआ है। और फिर अगली बात कि यीशु की क़यामत से हमें क्या मिला? नई इंसानियत की शुरुआत हुई। यीशु के जी उठने से एक नई इंसानियत की जो है वो शुरुआत हुई है। क्योंकि आदम में सब मरते हैं, लिखा है कि यीशु में सब जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। यीशु के जी उठने से नई इंसानियत का आगाज हुआ। और नई इंसानियत का आगाज कब होता है? जब हम ये अमल करते हैं। जब तक हम ये अमल नहीं करते, नई इंसानियत का आगाज यीशु ने क्यों पाने का बहुत दुश्मन? क्योंकि यीशु आदम के से जो गुनाह चल रहा था उस इंसानियत से वो बचना चाहता है। क्योंकि आदम में सब गुनाहगार थे, लेकिन हम इस तरीका से बच सकते हैं। इस तरीका से नई इंसानियत की शुरुआत होती है। और कलाम खुदा में लिखा है कि गुनाह के एतबार से, रोमियो 6:10 कसम, कि गुनाह के एतबार से सब मर जाते हैं, लेकिन रास्तबाजी के एतबार से, यीशु मसीह के एतबार से हम जीते हैं। हम नई जिंदगी का आगाज करते हैं और हम नई मखलूक हो जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियंस 15:17 टीचर राधिका पढ़ दे, और रोमियो 6:10 कोई भी खातम पढ़ दे बयान में। क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से मसीह किस लिए मुआ गया है जी? अगर आपसे कोई पूछे कि यीशु का मरना किस एतबार से है, तो आप बता सकते हैं कि वो गुनाह के एतबार से मुआ। और आगे, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता। तो खुदा के एतबार से क्या जी? वो जीता है। गुनाह के एतबार से वो मर गया, लेकिन खुदा के एतबार से वो जी उठा। और जैसे ही हम गुनाह के एतबार से पानी के अंदर जाते हैं, तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि मैं गुनाह के एतबार से जब पानी में डिप होता हूँ, गोता लेता हूँ, डूबता हूँ, तो मैं मर गया हूँ। लेकिन जैसे ही आप ऊपर आते हैं, तो रेजरेक्शन यानी कि नई जिंदगी का आगाज, नई इब्तिदा, नई जो है तौर पर नए मखलूक होकर आप बाहर आते हैं। क्योंकि आप गुनाह के एतबार से मर जाते हैं, लेकिन यीशु के नाम से जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो जिसके नाम से आप बपतिस्मा लेते हैं, अगर वो नहीं मरा तो आप भी नहीं मरेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदा है, तो आप भी जिंदा रहेंगे और हवा में उठकर उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पानी का बपतिस्मा नहीं लेंगे, तो फिर आप इस बदन में जूझेंगे और ये बदन फलाई ओवर नहीं कर सकता। अगर आप पानी का बपतिस्मा लेकर नई शुरुआत का आगाज करेंगे, तो फिर आप जलाली बदन में जी उठेंगे। जलाली बदन दीवारों के आर पार चला जाता है। उसे गेट बंद भी हो तो वो रसूलों और शागिर्दों के पास आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप नई शुरुआत, नई इंसानियत को हासिल करें, जलाली बदन में उठाए जाए, पौलुस कहता है कि जितने मसीह में सो गए, पहले वो उठाए जाएंगे जिन्होंने यीशु को कबूल किया। वो मसीह में कहता है, ये नहीं कहता कि जितने भी गुजर गए दोनों, वो कहता है जितने मसीह में पहले सो गए, और जितने मसीह में मेरे और आपके मानने वाले होंगे, फिर वो भी हालत बदल जाएगी और वो भी हवा में उसका इस्तकबाल। यीशु के जी उठने की कुदरत है। और फिर जब हम नई तौर पर इंसानियत को हासिल करते हैं, तो क्या होता है? और नए तौर पर जब हम शुरुआत करते हैं यीशु मसीह से, हम पानी में डिप होते हैं, मरते हैं और पानी से बाहर निकलते हैं, तो उसके साथ जी उठते हैं। और आखिरी बातें अमाल की किताब 2 बाब कि ये पैगाम क्या कर देता है? जब लोगों को समझ लग जाती है कि यीशु के मसलूबियत का पैगाम आज पूरी दुनिया में तब्दीली है। क्योंकि बड़े सारे कायदीन पैदा तो हुए, लेकिन जी उठा एक ही है, और वो यीशु मसीह है। 2 बाब निकालिएगा। चंद बातें आखिरी करना चाहते हैं ताकि आप इस पैगाम को दूसरों तक सुने और सुनाने का जरिया वसीला बन जाए। लिखा है अमाल 2 बाब की 22 ऐ इस्राएलियों सुनो, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था। ये सारा वाक्य बताने लगा कि उसने तुम्हें मसलूब कर दिया,
आज आपकी गवाही इसलिए पावरफुल है। और रसूल कहता है पहला कुरिन्थियों 15 बाब 14 कसा में, अगर तुम्हारा मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो तुम्हारा ईमान लाना और मुनादी करना क्या था जी? अगर मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो आज अगर कोई बच्चा भी जाकर कलाम सुना के कहता है कि मेरा यीशु जिंदा है तो वो फायदेमंद है। हालेलुया। अगर कोई औरत भी जाकर गवाही देती है जिसकी गवाही को सच नहीं किया जाता था, अगर वही जाकर गवाही देती है कि मेरा यीशु जिंदा है तो लोग ईमान ले आते हैं। आमीन। और जब लोग ईमान ले आते हैं तो इसी बात की आयत मुकस्सा में लिखा है 36 आयत मुकस्सा को पढ़ दिएगा। बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया था, हाँ जी, खुदावन भी किया और मसीह भी। जब हम इस पर ईमान लाते हैं कि मसलूब किया, उसे खुदावंद भी किया और फिर उसे मसलूब करके खुदावंद भी किया और मसीह भी कहा, जो मसाया उसका पहला दावा था वो भी पूरा किया। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि लोग क्या कहते हैं जी, फिर दिनों पर चोट लगती है। और वो चोट आज से 18 साल पहले हमारी जिंदगी में भी लगी। वो चोट खुदा के खादम मर्द दुआ सीनियर पास्टर शमौन साहब के भी दिल में लगी। वो चोट आपके दिलों में लगी। और अगर आज आप मसीह हैं तो उसी चोट की वजह से है, क्योंकि वो कलाम किया गया कि तुम्हारा मसीह मसलूब हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा। और फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि पतरस बता क्या साहबो हम क्या करें। और पतरस उन्हें एक तरीका बताता है। और पतरस ने 38 कसा में बेमौसम पढ़ दिएगा, जो तरीका बताया कि जिससे दिलों को चोट लगती है तो इस तरह का क्राउड बन जाता है। दिलों को चोट लगती है तो आम इंसान मर्द दुआ सीनियर पास्टर शमौन साहब बन जाता है। दिलों को चोट लगती है तो साइकिल वाला शख्स हवाई जहाजों में सफर करना शुरू कर देता है। और थोड़े दिनों बाद खुदा के फजल से मेरे लिए भी उसने मुमकिन किया है कि मैं यरदन की सरजमीन में जिनके वाक़यात मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर जाऊँगा। और ये सिर्फ मेरा कोई कमाल नहीं है, ये उसी कलाम की चोट का असर है जो हम पढ़ने लगे हैं। तो फिर क्या होता है जी, सुनाइएगा। पतरस ने उससे कहा तौबा करो। हाँ जी, आमीन आमीन, तौबा करो। पहला काम किया, हम दिल को चोट तो लग गई है कि यीशु जिंदा हो गया, यीशु को मसलूब किया गया। लेकिन अगर आसमान को खुला हुआ देखना चाहते हैं तो क्या करें जी, तौबा करें। और आगे, और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए, अगर ये पादरी साहब ने तौबा न की होती तो आज इतने जगहों में ये जा सकते थे। याद रखिए, अगर तौबा की है तो फिर आपके लिए आसमान खुलेगा। हालेलुया। और फिर आप दुनिया के कोनों कोनों में जाकर उस इंजील की मनादी को कर सकते हैं। लिखा है कि पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम का बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदुस के नाम में पाओगे। आमीन। अगर चाहते हैं कि आप यीशु की जी उठने की कुदरत में शामिल हो तो फिर तौबा बहुत जरूरी है। और फिर उस तौबा का रिजल्ट देखिए कैसा निकला, कलाम का रिजल्ट कैसा निकला। ये इस कलाम का रिजल्ट लिखा कि यीशु पैदा हो गया, मजूसी आ गए और तोहफे दिए गए दोनों। इससे हमें एक इत्मीनान मिला कि बादशाह के हम मुंतजर थे वो आ गया। लेकिन लोग कब बदलते हैं, जब ये बताया गया कि जो कुंवारी से पैदा हुआ था वो मसलूब हो गया, मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो लोग कहते हैं कि बताओ अब हम क्या करें। तो फिर पतरस कहता है कि यीशु के नाम का। और आज पूरी दुनिया में अगर मसीह लोग नजर आते हैं, मैं हूँ आप हैं, तो हम उसी मसलूब सलीब पर जो चढ़ा है उसकी जी उठने की कुदरत से मसीह है, ना कि इस बात से मसीह है कि यीशु दुनिया में आया, बल्कि हम इस बात से मसीह है कि यीशु दुनिया में आया तो है लेकिन वो दुनिया पर गालिब भी आया है। हालेलुया। वो गुनाह पर गालिब भी आया है, वो मौत पर भी गालिब आया है, वो इब्लीस पर भी गालिब आया है। और उसने जो है शिकस्त ली है और उसने कहा कि अब मैं अबद तक क्या रहूँगा जी, जिंदा रहूँगा। खुदा मुझे और आप इस कलाम को समझ